सो मैम, एक आइडियल एज क्या होना चाहिए एक टीनेजर गर्ल को टू स्टार्ट विजिटिंग द गायनेकोलॉजिस्ट? I feel as soon as girls start हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है और अगर ज्यादा हो रही है तो कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए? जो उसका फ्लो है generally सो मैम, कैन PMOS can lead to infertility in the future? 100%. Dr. Anjali Kumar, Director, Obstetrics and Gynecology, CK Birla Hospital, Gurgaon. She is having 35 years of experience. She is widely recognized for its expertise in high-risk pregnancies and advanced women's healthcare. जो हमारा fertility rate 2.1 था, now it is drastically changing to 1.9, which is a very severe number. तो ऐसा क्या बदल गया कि प्रेगनेंसी वो ही इतनी मुश्किल हो गई है? ना उसके 2-3 कारण है. नंबर 1, एग फ्रीजिंग होता क्या है एंड एग फ्रीजिंग कितना इंपॉर्टेंट बन गया है? कब एक लेडी को स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या आपको पता है इंडिया की फर्टिलिटी रेट पहली बार रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे गिरकर लगभग 1.9 तक पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 1 in every 5 कपल्स इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा है, जबकि PMOS जो पहले PCOS, PCOD के नाम से जाना जाता था, 10 to 20% रिप्रोडक्टिव एज वुमेन को अफेक्ट करता है। तो सवाल ये है, आखिर क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अब भी एम्बैरेसमेंट, मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप जाती है? क्या पीरियड पेन हमेशा नॉर्मल होते हैं? क्या PMOS का मतलब इनफर्टिलिटी है? क्या 30 के बाद प्रेगनेंसी रिस्क हो जाती है? क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फ्यूचर में फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? और क्या एग फ्रीजिंग मदरहुड को डिले करने का एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है? और आज हम इन सब बातों पे बात करेंगे। आज हम ये भी बात करेंगे कि पीरियड्स, PMOS, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, IVF, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज से जुड़े उन सवालों की जो हर वुमेन और हर फैमिली को जानना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही एक्सपर्ट लेड हेल्थ केयर कॉन्वर्सेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड फॉर दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर अंजलि कुमार, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, CK Birla Hospital, Gurgaon. She is having 35 years of experience. She is widely recognized for its expertise in high-risk pregnancies and advanced women's healthcare. She also holds the rare distinction of having a surgical innovation named after her, Kumar's technique, which is a reverse uterine closure technique. Thank you so much, ma'am, for coming at Medgate Today's studio, for giving a very insightful conversation on what is gynecology and what kind of new advancements, what are the taboos and what are the things which has to be cleared for that audience who has something in their mind and very 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 afraid to ask to the right person. So thank you Medgate and thank you Ritika for calling me here, and I hope I'm able to do justice to whatever questions you will be asking me. So let's start. Ma'am, you are having 35 plus years of experience. Being in such kind of industry where you have to not only break the taboos but also deal with the disease and deal with the patients. So just let me know in the very 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 simple words, gynecology है क्या, किसके साथ डील करता है, and is it just for the women, married women if I say, या इसमें men का भी बहुत ज़्यादा हाथ है? So by definition, gynecology means that we deal with women's health, women's diseases which are pertaining to women's health. And एक और branch होती है जिसको हम बोलते हैं obstetrics. So basically that deals with the pregnancy issues. So हमारी country में typically we are gynecologists and obstetricians both. So like I said, it deals with women, but it doesn't mean that that woman has to be a married woman. We deal with a girl right from the time she gets into puberty, even till the time she goes up to menopause and even later. So anything which is involving the reproductive health of a woman across her lifespan, we deal with that. And men definitely, women are not complete
without a man. I mean, Yeah. not in a literal sense, but the reproductive Yes. health of a woman is completely intertwined by a man's contribution Yeah. also, especially, you know, when she is married, when she is planning a pregnancy. So many often we have to look after the male partner also. या सो मैम एक आइडियल एज क्या होना चाहिए एक टीनेजर गर्ल को टू स्टार्ट विजिटिंग द गायनेकोलॉजिस्ट? So I actually feel, you know, as soon as the girl starts getting her periods, that is a time when she must be brought to a gynecologist. Now why? Some people might say, ये तो बड़ा जल्दी है, इतना हाँ. जल्दी जाके क्या करना है? But that is the time the gynecologist can explain her कि period क्या होता है, how the periods will happen, how should she look after her, Yes. about the hygiene, about the regularity of the periods, and the importance of diet, importance of physical activity, and there are a lot of things which actually control the health of the periods. So that is a visit which I feel is very very important. एक young लड़की को अगर हम उस age पे सिखा पाएं ये सारी चीजें, so that information is going to be very very valuable till she grows later in And life. she will pass it on to other people as well. Absolutely, absolutely. मैम यू जस्ट टॉक अबाउट पीरियड्स, तो पीरियड्स होता क्या है? एंड पीरियड्स के दौरान बहुत लड़कियों को नॉर्मल दर्द होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसकी वजह से दे स्किप डूइंग देयर नॉर्मल चोर्स एज वेल. सो आई जस्ट वांट यू टू प्लीज डिकोड इन द सिंपलर वे. So सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पीरियड होता क्या है. यस. सो हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूट्रस होता है, साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं, साइड में 2 ओवरीज होते हैं. यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं. सो हर महीने ये लाइनिंग थिक होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग वेस्ट हो जाती है और बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देती है. सो इन सिंपल टर्म्स it is the periodic thickening of that endometrium and shedding of that endometrium. So period का होना कोई डर्टी चीज नहीं है. ऐसा नहीं है कि हर महीने के अंदर कुछ कचरा इकट्ठा हो गया है जो कि हर महीने के एंड में उसको निकलना ही चाहिए. It just happens because of the hormonal changes. माने हर महीने हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करती है. Yes. और अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो पूरी तैयारी वेस्ट हो जाती है और उसको बॉडी डिस्कार्ड कर देती है. इसको हम पीरियड्स कहते हैं. अब जब वो बॉडी उसको डिस्कार्ड करती है एंडोमेट्रियम को, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है टू एक्सपेल दैट लाइनिंग. उस समय हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस लाइनिंग को एक्सपेल करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट पेन होता है. ठीक है. अब तो थोड़ा बहुत पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है. अगर आपको फर्स्ट सेकेंड डे 2-3 बार कोई टैबलेट लेनी पड़ती है तो इट इज परफेक्टली नॉर्मल. लेकिन अगर आपको 4-5 दिन में 3 बारी पेन किलर की दवाई लेनी पड़ती है, और इफ द पेन स्टार्ट्स मच बिफोर द पीरियड्स एंड कंटिन्यूज इवन बियॉन्ड द पीरियड्स आर ओवर, और अगर आपको कोई साथ में पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, पेनफुल डेफिकेशन हो रही है, मतलब पॉटी पास करने में आपको दर्द हो रहा है, और अगर मैरिड वुमेन में या इवन अदरवाइज अगर किसी को इंटरकोर्स के दौरान पेन हो रहा है, नाउ दीज थिंग्स कुड बी साइन ऑफ समथिंग else and they should be definitely reported to the doctor. एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, ज्यादातर लोगों में ना ये एक मिथ होता है कि हमें दवाई नहीं खानी है. Yes. तो मैं सबको बोलती हूँ भाई इतना मार्टर बनने की जरूरत नहीं है. प्लीज टेक अ पेन किलर. टेकिंग अ पेन किलर ड्यूरिंग पीरियड्स इट्स एब्सोल्युटली सेफ. लेकिन अगर आपको 3-4-5 दिन दवाई लेनी पड़ रही है तो प्लीज गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि आपको गायनेकोलॉजिस्ट असेस करे कि कहीं कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है. एंड मैम पीरियड्स में भी सारी विमेन की बॉडी डिफरेंट होती है. किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, और आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा
पूरे यू कैन से यूथ में एंड विमेन फर्टिलिटी में कॉमन हो गया स्कैंटी पीरियड्स. तो बेसिकली ये स्कैंटी पीरियड्स क्या है, हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है, और अगर ज़्यादा हो रही है तो कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए. और तीसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड ऑन ही करना चाहती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको 2 से 3 महीने स्किप हो जाता है पीरियड्स एंड इट बिकम्स देयर साइकिल. So how dangerous it is, and is it normal? Then why it is happening to them? So इन सब चीजों का जवाब देने से पहले तो ये समझते हैं नॉर्मल पीरियड क्या होता है. Yes. So a normal period can last anything between 2 to 8 days. 2 to 8 days. ठीक है. एंड जो उसका फ्लो है, generally a woman soaks about 10 to 12 pads per year, per cycle. Per cycle. Fully soaked, right? जो पीरियड का जो ब्लड लॉस होता है, इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 20 to 50 ml, which typically translates into 10 to 12 soaked pads. ये नॉर्मल है. देन ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? सो एनीथिंग बिटवीन 22 to 35 days is supposed to be normal. Okay. अब अगर मान लीजिए किसी का पीरियड 22 डेज पे आता है, वो उसके लिए नॉर्मल है. बिल्कुल. लेकिन अगर कुछ दिन के बाद उस लेडी का पीरियड अब 45 डेज पे आता है, तो वो एबनॉर्मल है. ओके. अगर किसी का पीरियड पहले 35 डेज पे आता था, अब 15-15 दिन पे आता है, तो वो एबनॉर्मल है. सो पहले अपना नॉर्मल समझना पड़ेगा कि मुझे 2 दिन के लिए पीरियड होता है, मुझे 25 डेज पे आता है, दैट्स माई नॉर्मल. सो अगर पहले आपको 2 दिन के लिए पीरियड आता था, अब 6 दिन के लिए आता है, या पहले आपको 6 दिन के लिए आता था, अब खाली 1 दिन के लिए आता है. Yes. Now this is a sign of something going wrong. ठीक है. So 2 to 8 days, about 20 to 50 ml. Yes. And the cycle should be somewhere around 22 to 35 days. Yes. ये नॉर्मल है. ज़्यादा पेन इसमें नहीं होना चाहिए. Now let's start with कि heavy periods क्या होता है. जैसे मैंने बताया कि एक एवरेज साइकिल में आपको 10 to 12 पैड्स सोक हो रहे हैं. लेकिन अगर आपको लगता है अब आपके पैड ज़्यादा सोक हो रहे हैं, अगर आपको बड़े बड़े क्लॉथ्स पास हो रहे हैं, सो मच सो कि आप उसको फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे आपकी लीकिंग हो जाती है, स्टेनिंग हो जाती है, सीट खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए. नाउ दीज आर थिंग्स विच से कि आपका पीरियड का फ्लो हैवी है. अगर उसके साथ आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. बाय द वे हमारी कंट्री में एज इट इज़ विमेन हैव लॉट ऑफ एनीमिया. Yes. लो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम लोग की डाइट भी एज इट इज़ लो हीम डाइट है. प्लस हेवी पीरियड्स, इट कंपाउंड्स द इफेक्ट ऑफ एनीमिया. Yes. सो अगर आपको एनीमिया हो रहा है, अनएक्सप्लेन एनीमिया है, तो हम सबसे पहली चीज एक पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पीरियड कैसे आ रहा है. हैवी पीरियड तो नहीं है, लंबा पीरियड तो नहीं चल रहा है. अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं हैवी पीरियड्स के? कॉमन रीजन होता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. सिंपल इन्फेक्शन इन द पेल्विस, इसको मेडिकल भाषा में PID बोलते हैं, वो हो सकता है. अगर कोई लेडी कॉपर टी यूज कर रही है, IUD जिसको हम बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो उससे भी किसी को हैवी पीरियड हो सकता है. देन कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है. अब फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस. नाउ ट्यूमर डज नॉट मीन कैंसर. एनी ग्रोथ इन द बॉडी इज कॉल्ड अ ट्यूमर. ठीक है. तो अगर यूट्रस की वॉल में कोई ट्यूमर्स हैं, इसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं. सो फाइब्रॉइड्स से ये भी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स की फाइब्रॉइड्स होते हैं. कुछ फाइब्रॉइड्स जो बड़े होते हैं, जो यूट्रस के अंदर की तरफ होते हैं, उनसे हैवी पीरियड होता है. फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप्स. तो these are soft growths inside the endometrium, जिसकी वजह से भी heavy period होता है. Then एक आजकल एक और प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, इसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. उसके अंदर भी बहुत हैवी पीरियड होता है, पेनफुल पीरियड हो सकता है. एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट सिंस मेरे दिमाग में भी सडनली आया कि विच एवरी वुमन शुड नो, कि ये तो हमने साइकिल डिस्क्राइब किया. देयर शुड बी नो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. माने अब जब आपका पीरियड खत्म हो गया, एक पीरियड आपका 5 या 6 दिन खत्म हो गया, एंड बिफोर द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, बीच में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए. Okay. That is also abnormal. Ma'am, sometimes I have like read कि intercourse के टाइम पे भी bleeding होने लग जाती है. So any bleeding which is happening in between the periods should be investigated. अगर post intercourse bleeding हो रही है, तो कहीं कोई अंदर इन्फेक्शन है, सर्विक्स में प्रॉब्लम है, कहीं कोई बिगिनिंग ऑफ सर्विकल कैंसर्स तो नहीं है. इनफैक्ट जितनी भी जेनाइटल मैलिग्नेंसीज होती हैं,
मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो भी मेलिग्नेंसीज होती हैं दे यूजुअली प्रेजेंट बाय एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स कि बीच बीच में ब्लीडिंग हो गई, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो गई। अब किसी लेडी का अगर पीरियड खत्म हो गया 45 इयर्स की एज पे, लेट्स से 50 साल की एज पे खत्म हो गया, उसके बाद उसको कोई भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एनी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज ऑलवेज suspicious and that has to be investigated. Yes, understood. And ma'am, what is scanty periods? You have already talked about the heavy one. Okay, so scanty period क्या होता है? Now ये भी एक प्रॉब्लम है जो आजकल ज्यादातर लड़कियों को होती है Yeah. कि पीरियड मेरा पहले 5 दिन चलता था, 6 दिन चलता था, अब खाली 1 या 2 दिन ही आता Yes. है। सो जो फ्लो ऑफ द पीरियड है, मतलब कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ये डिपेंड करता है हमारे हॉर्मोन्स पे। Understood. एंड दूसरा कि कहीं वहां पे यूट्रस के अंदर ही कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी का एंडोमेट्रियम खराब हो गया बिकॉज ऑफ सम ओल्ड इन्फेक्शन, किसी की 2-3 बार डीएनसी हो गई तो उसकी वजह से वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई। बट ज्यादातर केसेस में इट इज हार्मोनल। क्या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? किसी को थायराइड है, किसी को PMOS है, Yes. किसी को हाई प्रोलैक्टिन है, किसी को स्ट्रेस है। इनफैक्ट जो स्ट्रेस है वो हमारे हॉर्मोन्स को ब्रेन लेवल पे कंट्रोल करता है। इनफैक्ट मैं सबको अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि जो हमारी पीरियड्स की पूरी कहानी है वो हमारे ब्रेन से शुरू होती है। इसको हम HPO एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। Yes. वहां से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि पिट्यूटरी पे काम करते हैं, फिर पिट्यूटरी से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि ओवरी पे काम करते हैं, और फिर ओवरी से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि यूट्रस पे काम करते हैं, और फाइनली पीरियड होता है। Yes. अब अगर इस पूरी कहानी में कहीं भी कोई भी ट्विस्ट आ जाएगा Yes. तो पीरियड गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ज्यादातर केसेस में अगर आपको स्ट्रेस है, वरी है, एंजाइटी है, लैक ऑफ स्लीप है, तो भी आपका पीरियड यहाँ से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत लोगों ने देखा होगा जब आपके एग्जाम्स होते हैं या कोई आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में हो तो आपको 1-2 महीने तक पीरियड नहीं होते। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई सडन स्ट्रेस आ गया, सडन इलनेस, somebody lost a family member, Yeah. तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ईटिंग डिसऑर्डर्स, Eating, which is one of the biggest dangerous thing which is हम happening. बोलते हैं बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं फॉर वेट लॉस। हाँ, yes. एनोरेक्सिया, उससे Yeah. भी आपका पीरियड खराब हो सकता है। एक होता है बुलिमिया व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ एनोरेक्सिया, मतलब बहुत ज्यादा खाना Heavy. खाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। दैट कैन आल्सो डिस्टर्ब योर पीरियड्स। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आजकल। बिल्कुल। एक तो वैसे भी हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी आजकल कुछ है ही नहीं, ना के बराबर। सबके पास गाड़ी है, लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। पहले तो लोग फिर भी मार्केट जाते थे सब्जी खरीदने के लिए या ग्रोसरीज खरीदने के लिए। आज सबकी लाइफ में ब्लिंकिट है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, ज़ेप्टो है। सो कुछ भी नहीं है, सबके पास इतने ज़्यादा फैंसी इक्विपमेंट्स हैं घर पे। वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स हैं, मेड्स हैं। So I tell this to everyone that we are living in a very, very dangerous, Yes. Era. environment Yeah. and era. When there is no physical activity, when there is so much of stress, and we are surrounded by bad food, Yes. bad food choices, and all three together combine to lead to what is now known as PMOS, which is a medical disorder. थोड़े दिन पहले तक हम इसको PCOS बोलते थे। Exactly. हम तो इसको PCOD और PCOS के नाम से ही जानते हैं। बट अभी recently, for all the right reasons, now it has been classified as PMOS. Okay. अब PMOS का full form क्या है? It says polyendocrine metabolic ovarian disease. ये थोड़ा सा complicated लगेगा, Yeah. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझे, polyendocrine मतलब it affects multiple endocrine systems in the body. Understood. Your thyroid, your pituitary, your skin, your hair, your periods. Metabolic मतलब इसका जो core reason है,
it is because of insulin resistance. Insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता बिल्कुल। है, जिसकी वजह से हमारा पैंक्रियास और इंसुलिन बनाता है और बनाता है, उसको तो कोई हमारी resist- बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज बल्की हो जाती है. नाउ दे प्रोड्यूस एबनॉर्मल हार्मोन्स व्हिच लीड टू एब्सेंट पीरियड, स्कैंटी पीरियड्स, एक्ने, फेशियल हेयर, स्कैल्प हेयर लॉस. Understood. तो सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? इंसुलिन रेजिस्टेंस. Insulin resistance. सो पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम. ओवेरियन मतलब इसका एंड इफेक्ट हमारी ओवरी पे आता है, हमारी रिप्रोडक्टिव Yes. हेल्थ पे आता है. तो मैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10 साल पहले से लोगों को बोलती हूँ, भाई ओवरी बेचारी कल्प्रिट है. हाँ. ये PCOS जो है इट्स अ मिसनोमर. बेचारी ओवरी इज फाइनली बेयरिंग द ब्रंट. इट इज जस्ट probably just the tip of iceberg. उसके नीचे बहुत कुछ चल रहा है which is leading to all this. Yeah. And thankfully now हमारा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मेडिकल जर्नल है, इसको हम लैंसेट बोलते हैं. लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको रीडिफाइन किया है कि हम PCOS is actually not the right term because it makes people think that it is a reproductive disorder. Yes. Actually, it is not a Not. reproductive disorder. It has got a lot of other things. So, Okay. So, ma'am, can PMOS, which has been now renamed, can lead to infertility in the future? 100%. Okay. 100%. आपकी ओवरीज बल्की हो जाती हैं, आपकी ओवुलेशन नहीं हो रही है. Obviously, अगर ओवुलेशन नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? आपको प्रेग्नेंट होने के लिए एक अंडा तो चाहिए ना. बिल्कुल. प्लस आपके हार्मोन्स बिल्कुल हेवाए हो जाते हैं. हाँ. तो मान लीजिए अगर ओवुलेशन हुई भी तो नाउ द फर्टिलाइज्ड एग डज नॉट फाइंड अ गुड environment to बिल्कुल. implant. Exactly. So definitely PCO, PCOD, now PMOS patients, they struggle to become pregnant. Okay. And ma'am, can it lead to anxiety and stress? So there is not really a direct correlation, but yes, because of all these hormonal disorders, sometimes weight gain, insulin resistance, Yes. involvement of multiple endocrine systems, anxiety, depressive disorders, eating disorders are very common in such women. Puberty always hit to a teenage girl around 13 to 15 age group. But nowadays it is below 10 years. Why this is happening and how can it will lead to infertility in the future? तो उसको एक दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि नंबर 1 ये तो एक डेफिनेट रियलिटी है Yes. कि अब जो गर्ल्स हैं उनको पहले पीरियड्स हो रहे हैं, पहले मिनार्की हो रहा है. बिल्कुल. मिनार्की का मतलब क्या होता है? जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड Periods होता है आते तो हैं. मिनार्की बोलते हैं. तो इनफैक्ट आई वाज टेलिंग समवन ऑन सम अदर conversation, my grandmom had her first period when she was 17 or 18. Oh. 17 or 18. Of course, वो भी थोड़ा medically not normal है. My mother had her period when she was 15. Yeah. I had my first period when I was 12. And my daughter had her first period when she was 11. And today we see young girls as young as 8 years having periods. Yes. As young as 7.5. मतलब मैंने जो सबसे छोटा young patient अपने clinical practice में देखा है, she was not even 8 years old. Oh my God. Now इससे बड़ी different type की problems हो सकती हैं. So जब हमारे periods होते हैं, so that leads to signaling of closure of epiphysis. Now epiphysis क्या होते हैं? हाँ. हमारी long bones के ends होते हैं. Understood. तो उससे ये क्लोजर हो जाता है and then उससे Okay. हमारी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है. Yes, exactly. तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का रिलेशन है. तो इट्स अ फैक्ट जब अर्ली पीरियड्स होते हैं तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है बिकॉज ऑफ दैट अर्ली क्लोजर ऑफ Yeah, एपिफिसिस कम हो सकती है. अब आते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पे कि ऐसा क्यों हो रहा है. Yes. इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस. मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था HPO axis. Yes, you- Hypothalamic pituitary ovarian axis. So for some girls, this HPO axis matures early, leading to early periods. Yeah. Now this typically happens when our girls are fed the bad diet, processed, packaged diet, when our girls are physically not active, when our girls have constant access to screens, when they are not Understood. sleeping. Today,
हम कितने लोगों से बात करते हैं एंड इट मेक्स मी वरीड कि आजकल की डेट में लोग सोते नहीं हैं. बिल्कुल भी नहीं People सोते don't हैं. sleep. Something which is so very important for the recovery of Your whole body. whole health. You know, sleep is the time जब body recover करती है. Lot of regenerative things happen at the time of sleep. Lot of immunological recovery happens. Brain level पे होता है. Hormonal levels हमारे set होते हैं. लोग सोते नहीं हैं because of whatever reasons. We have people are busy watching their screens, scrolling reels, and then Instagram and Making presentations in the night. whatever. And now it's a culture. When I talk to young kids, they say, "Oh, my friends are awake till 3 o'clock." Exactly, It's peer not pressure cool time. to sleep at 10 o'clock. So, एक इतना बड़ा question mark हो गया हमारी health. बिल्कुल मैम. Then today, kids are not physically active, you know, for the reasons we discussed. कि आज की डेट में कोई physical activity का avenue ही नहीं है हमारे पास. And on top of that, there is another problem which I see. Many people do not have access to good parks, good walking roads. Which अब एक कोई अच्छी सोसाइटी में रह रहा है तो शायद उसके पास पार्क है, वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन अगर कोई छोटे शहर में रह रहा है उस लड़की के पास कोई जगह ही नहीं है कि कहाँ जाके वो खेल सके. So the problems are multiple at the policy level also and at the ground level yes. also. So somewhere as parents we have to make sure कि भाई क्या मेरी बेटी फिजिकली खेलती है कि नहीं. मैं इनफैक्ट अपने सारे पेशेंट्स से पूछती हूँ that as a mother you should be worried कि क्या मेरी बेटी खेलती है. Of course you're worried कि मेरी बेटी पढ़ाई करती है कि नहीं करती, but क्या मेरी बेटी खेलती है. Yes. Gone are the days when children used to go out for 2 to 3 hours and the parents had to pull them back into the house. लेकिन आज ऐसा नहीं है. ये हमारा टाइम था जब हमें खींचा जाता था कि हम 2-3 घंटे तो बाहर जाके बिल्कुल डर्टी होके आते थे, मिट्टी में बिल्कुल. But today that doesn't happen. Not at and all. Children are glued to the screen. So increased screen time, lack of physical activity, and early exposure to processed and packaged food. मतलब आज के डेट में pizzas, burgers, Maggi, bread, we are surrounded by bad food. The junk food is literally a junk. Yeah, it's and ma'am, and मैं ये सबको बोलती हूँ, see, there is nothing like a junk food. Either it is junk or it is food. Food should not be junk, and junk cannot be called food. Understood, ma'am. तो मैम अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं तो इसमें पार्ट आता है विमेन हाइजीन का कि हाउ अ विमेन शुड मेंटेन हर हाइजीन. और सबसे पहले हाइजीन में मैम आता है वजाइनल डिस्चार्ज. वजाइनल डिस्चार्ज मैम बहुत कलर्स के होते हैं. मैंने एक स्टडीज में देखा था कि इट डिफर्स फ्रॉम अराउंड 4 to 5 कलर्स. आई डोंट नो व्हाट दीज कलर्स आर. हम बस जानते हैं कि दैट देयर इज अ वजाइनल डिस्चार्ज, इट इज हैपनिंग, बट सम ऑफ द डॉक्टर्स एंड स्पेशली द गायनेकोलॉजिस्ट सेज ऑलवेज monitor your vaginal discharge colors because if something is changing it can lead to something very dangerous. तो पहले तो ये समझते हैं vaginal discharge होता क्यों. Yes. So vaginal discharge happens because हमारी vagina में glands होती है. They secrete some mucus. उसके अंदर dead cells भी होती हैं, कुछ bacteria भी होते हैं. तो they together make a liquidy kind of a substance. And the purpose of that discharge is to keep the vagina lubricated. Understood. And ये जो vaginal discharge होता है थोड़ा सा acidic होता है. क्यों होता है acidic? So that वहाँ पे bad bacteria grow ना कर पाए और vagina में कोई infections ना हो. Protectively. ये normal है. That is why अगर आप देखेंगे लोगों का जो अंडरवेयर है थोड़े दिन बाद वहाँ पे येलो हो जाता है या वहाँ से वो पतला हो जाता है because it's a acidic vaginal discharge which is absolutely normal. अब vaginal discharge जो होता है ये it should be clear, it should be mucoid, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई जलन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए. लाइक यू सेड रेड, ग्रीन, येलो कुछ नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर म्यूकॉइड लाइक नोज ब्लू. अंडरस्टूड. जैसे आपको जुकाम लग जाए तो जैसा डिस्चार्ज होता है वैसा. उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइकिल.
माने जब आपका पीरियड खत्म होता है उस समय डिस्चार्ज काफी कम होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा सा थिन होना शुरू हो जाता है। मिड साइकिल में जब आपकी ओवुलेशन का टाइम होता है, डिस्चार्ज इतना पतला हो जाता है या इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी पैंटी एक्चुअली वेट हो जाएगी, एंड इफ यू होल्ड इट यू कैन एक्चुअली स्ट्रेच इट लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं स्पिन बारकीट फिनोमेना। ये क्यों होता है? बिकॉज मिड साइकिल बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए, ताकि अगर स्पर्म अंदर आए तो वो फटाफट फर्टिलाइज होके इट कैन चला जाए, ठीक है। फिर ओवुलेशन के बाद वो डिस्चार्ज अपने आप थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है, एंड जस्ट बिफोर पीरियड वो हल्का सा बढ़ जाता है। नाउ दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज में कोई कलर है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ग्रेइश है, इट कुड बी साइन ऑफ एन इन्फेक्शन। अगर स्मेल है तो भी इट कुड बी साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर वो कर्डी वाइट है, बहुत इची है, इट कुड बी साइन ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन। एंड अगर वो ब्लड स्टेन है तो डेफिनेटली वी हैव टू चेक कि कहीं कोई मैलिग्नेंसी या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मैम ड्यू टू एसटीडीज आल्सो इसमें कोई चेंजेस आते हैं? बिल्कुल। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एनी इन्फेक्शन इन दैट एरिया कैन चेंज द कलर, अपीयरेंस, the amount and the smell and you know whether there is itching or smell. Understood. So अगर आपको लगता है कि आपका डिस्चार्ज क्लियर नहीं है, स्मेल है, इची है, रेड ग्रीन येलो है, तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, गो टू अ डॉक्टर। या और मैम आजकल मतलब वी आर वेरी मच यू कैन से नोन टू पैड्स and nowadays tampon, menstrual cup as well, and अभी एक और चीज डिस्कवर है, that is the periods panty. मैं अगर इन चारों को लेके चलूँ तो मैम which one is the safer, मतलब which one is the safest one, और अगर tampon और menstrual cup किसी को use करना है तो what is the correct time to start using it, and if is there any kind of dangerous thing which can lead to while using such kind of things, because बहुत taboo है पूरे हमारे society में in regard with the menstrual cup and the tampons. So I would start by saying कि जो best menstrual hygiene product है वो है जो आपके लिए सही बैठता है, ठीक है। अब कोई आदमी को पैड बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, कोई आदमी को टैम्पॉन्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, तो टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप की भी बात करते हैं। जब हम पैड यूज करते हैं तो वो आपका ब्लड आउटसाइड सोक करता है, जो पीरियड पैंटी होती है वो भी आउटसाइड सोक करती है, लेकिन जो टैम्पॉन होता है वी पुट इट इनसाइड द वजाइना, वो अंदर जाके ब्लड को सोक करता है। सो इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल जो कि कोई आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, डांस के लिए जा रहे हैं, हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, आप टैम्पॉन तब यूज कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप वो भी एक कप जैसी चीज होती है, सिलिकॉन का एक कप होता है, इट्स लाइक अ बेल शेप काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच यू पुट इनसाइड द वजाइना, वो आपकी वजाइना में एकदम फिट हो जाता है लाइक अ वैक्यूम, एंड इट कलेक्ट्स द ब्लड। सो टैम्पोन सोक्स द ब्लड व्हाइल दिस कलेक्ट्स द ब्लड, एंड आपको रेगुलर इंटरवल पे टैम्पोन को भी चेंज करना है, मेंस्ट्रुअल कप को भी निकाल के उसको धो के फिर से अंदर डालना है। तो अगर आपको ये लगता है कि आई एम कंफर्टेबल पुटिंग समथिंग इनसाइड, तो टैम्पोन बिल्कुल सही है, मेंस्ट्रुअल कप भी बिल्कुल सही है। मेंस्ट्रुअल कप का एक और फायदा है कि उसकी कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हार्डली वो 200 या 300 रुपए का एक अच्छा मेंस्ट्रुअल कप आता है, एंड इट कैन लास्ट अप टू 5 years. सो इमेजिन कि उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, रिकरेंट कॉस्ट, एंड एक एनवायरमेंटल कॉस्ट भी नहीं है। सो थिंग्स लाइक पैड्स एंड टैम्पॉन्स एंड इवन panties, you know, they take many years to completely decompose into the environment. So that way menstrual cup जो है वो सबसे बढ़िया है, because उसमें कोई ऐसा कोई waste generate ही नहीं होता है, and उसके अंदर cost भी नहीं है, बिल्कुल। But बहुत लोग होते हैं जिनको वजाइना के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करने में उनको थोड़ी सी घबराहट होती है, yes, and somehow in our society girls are told that good girls don't do anything like that. Yes. Now, that is a very it's a very what do I say, misfortune कि हम अपनी लड़कियों को ये सिखा रहे हैं। पहली बात तो people have to understand कि hymen or no hymen, it doesn't make
a girl virtuous or less virtuous. Very well said, Hymen ma'am. is never a proof of your virginity. Yes. एंड अगर आपको हाइमन की बहुत ही ज्यादा चिंता है तो फिर आप मत यूज करिए, बट डोंट स्प्रेड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. Yes. टैम्पोन भी बिल्कुल सही है, पैड भी बिल्कुल सही है, सारी चीजें बिल्कुल सही है. डिपेंड करता है आपकी पॉकेट को, आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल. मैम, जो भी यूज करें अच्छे हाइजीन से यूज करें बस. जो पीरियड्स पैंटी है वो बार बार उसको हम वॉश करके पहनना, इज इट वेरी यू कैन से हाइजीनिक? No, as far as I know, period panties are to be disposed. There is one more which has come, which Acha. you can just wash it. So that has just made some kind of rumor on the internet that how it will give the hygiene to the women while using it. So that just came into my mind. So जो generally मैंने देखा है period panties जो होते हैं, they come with an inbuilt Yes, pad. Now yes. that is a disposable panty. But अगर supposing उसके साथ कोई ऐसा pad attach है, which a person, I've not seen what you're talking, कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप detach करके आप उसको wash करके दोबारा उसमें Yes. चिपका सकते हो. So technically speaking, I don't think so there is anything wrong with that. As long as आप उसको अच्छे से wash करते हैं, अच्छे से dry करते हैं, and उसके बाद use करते हैं, it's fine. And I remember my mom telling me, उनके ज़माने में they used to be doing this, that they used to be using a cloth pad, Yeah. and every month or after every use they used to wash it. Understood. This is many years Yes, back. the cotton cloth. अब अगर हम बात करें मैम something about the pills, the contraceptive pills. So हमारे यहाँ कितने types of contraceptive pills available हैं? And अगर हम उसको regular use करते हैं तो वो कैसे हमारे reproductive health को, fertility को affect करता है? So contraceptive pills जो होती हैं, they, number one, I would really want to tell people कि contraceptive pills बिल्कुल safe होती है provided they have been recommended by a qualified doctor, not by your friend कि मेरी friend ये लेती थी तो मैंने भी ये लेना Yes. शुरू कर दिया. Not like that. So contraceptive pills बहुत टाइप की होती हैं. Hormonal pills होती हैं, non-hormonal pills होती हैं. Hormonal में भी estrogen and progesterone pills होती हैं, only progesterone pills होती हैं, sequential pills होती हैं, different type of estrogen होते हैं, different type of progesterone होते हैं. तो एक qualified gynecologist ही आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी पिल सबसे ज़्यादा बेस्ट है. तो पहली बात तो ये है कि पिल सेफ होती है अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है. Pill has to be taken according to a particular schedule. It is not like this कि जब इंटरकोर्स हुआ तो आपने एक टैबलेट खा ली. So that to avoid the pregnancy. हाँ, ऐसा नहीं होता है. So एक और चीज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक अलग होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक अलग चीज़ होती है, और एक अबॉर्शन पिल है जो कि अलग होती है. Okay, so there are 3 types of pills. हाँ, so ब्रॉडर एरिया ब्रॉडर में एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हुई जिसके अंदर मैंने आपको बताया हार्मोनल, नॉन हार्मोनल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कम से कम 100-200 टाइप्स की पिल्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. फिर उसके बाद होती है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, विच मीन्स कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया है एंड आपको लगता है कि आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है एंड यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी. तो उसके लिए आपको तुरंत एक टैबलेट चाहिए. वो एक अलग चीज होती है, वो आप टैबलेट ले सकते हो, एक सिंगल टैबलेट ले सकते हो. तो ये हो गया. फिर तीसरी होती है अबॉर्शन पिल, विच मीन्स कि आप अब प्रेग्नेंट हो गए, इट्स एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए. तो पहली बात, अबॉर्शन हमारी कंट्री में एब्सोल्युटली लीगल है, प्रोवाइडेड इट इज डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. उसके लिए हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव MTP एक्ट है, मतलब इट्स रियली प्रो वुमेन. ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं, नॉट मैरिड है, एक अनमैरिड लड़की भी अबॉर्शन बहुत इजीली एक्सेस कर सकती है प्रोवाइडेड शी इज मोर देन 18 years of age, right? So अगर कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है, once again please do not take advice from your friend or your well-wisher. Remember, your doctor is your best well-wisher, especially in matters like this. प्लीज़ कम टू अ डॉक्टर. तो डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द इंटायर प्रोसेस फॉर दिस. सो ये डिफरेंट
तीन चीजें अलग होती हैं. एंड मैम अगर हमने अबॉर्शन पिल ले लिया या हम फ्रीक्वेंटली अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए समथिंग आई पिल और एनी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो क्या ये हमारी इनफर्टिलिटी को लीड कर सकता है फ्यूचर So पहली बात, आई पिल इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इट्स एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ठीक है, बहुत फर्क है. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी when you regularly take it. Yeah. Emergency contraceptive pill has to be taken only at that point of time. Yes. And ये भी is not a very nice thing कि आप जब इंटरकोर्स हो आपने एक आई पिल या कुछ अनवांटेड खा लिया आपने. अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलरली प्रोटेक्शन की जरूरत है तो आप एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यूज करें. ना यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल will never lead to infertility. In Okay. fact, it will prevent infertility by preventing a pregnancy, by preventing an unwanted pregnancy. अगर किसी को unwanted pregnancy होती है, उसने DNCs कराया है या कहीं unauthorized जगह से कोई treatment लिया, that has a potential to cause infertility and serious medical problems. So, most important, प्लीज फाइंड अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके आपने ये सारी चीजें लेनी है, अपने आप नहीं लेनी है. मैम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये मैंने खुद देखा है व्हेन अ वुमन टेक इट सम काइंड ऑफ चेंजेस हैपन इन देयर बॉडी फिजिकली. नहीं, नॉट रियली फिजिकली. आपका पीरियड थोड़ा बहुत डिले हो सकता है कभी कभी. जैसे आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया, उसके 3-4 दिन के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, which is normal because it's a hormonal pill. And हो सकता है कि आपका नेक्स्ट साइकिल भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आए, आगे आए या पीछे आए. That's perfectly फाइन. But once again, you know, in case अगर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया है, आपको पीरियड नहीं आया, please go to a doctor because emergency contraceptive pills also can fail Okay, and it can lead to the pregnancy. तो अगर आपको पीरियड नहीं आया, और दूसरी चीज अगर आपको बहुत हैवी पीरियड आया तो भी डॉक्टर के पास जाना है because sometimes it could be an early abortion. Okay, understood. So पिल लेने के बाद अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा या अनयूजुअली हैवी आ रहा है या अनयूजुअली पेनफुल है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर. यस, हम थोड़ी प्रेगनेंसी की बात करते हैं मैम बिकॉज यू आर ऑल्सो बोथ वन. तो मैम आजकल एक अभी नया सर्वे आया था दैट प्रीवियसली इट वॉज इन जापान फर्टिलिटी रेट गिर रहा था बट नाउ इट इज हैपनिंग टू इंडिया. जो हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 था नाउ इट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग टू 1.9 विच इज अ वेरी सीवियर नंबर्स. तो ऐसा क्या बदल गया कि प्रेगनेंसी जो यहाँ पे एक बोलते हैं ना भगवान की देन होती है वो ही इतनी मुश्किल हो गई है आजकल के टाइम पर. या दिस इज अ फैक्ट कि हमारी प्रेगनेंसी रेट्स अब कम हो गई हैं. बिल्कुल. ना उसके 2-3 कारण हैं. नंबर 1, women are willfully delaying their pregnancies or avoiding pregnancies. Willfully. Yes. मतलब आप by choice you don't want to get pregnant. Today women are getting married late and they have their other aspirations in life, career, you know, travel. And इसमें कोई गलत बात नहीं. Yes. In fact, I tell people कि आपको बच्चा करना है या नहीं करना है, कब करना है, कितने करने हैं, it should be completely your choice. Nobody else should be dictating this to you. Yes. It should be completely your choice. Nobody, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके इन-लॉज, चाहे आपकी सोसाइटी, कोई भी नहीं. It is your choice. Yes. So number 1 is that. Now for whatever reason, women are now not wanting to get pregnant. So that is number 1. Secondly, nowadays fertility rates medically are also coming down because women are losing their eggs faster, which means so एक term होता है जिसको हम बोलते हैं ovarian reserve, which means how many number of eggs a woman is born with. Okay. So a woman is born with finite number of eggs for her lifetime. यानी कि जब वो पैदा होती है, गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, तो उसकी ओवरी में भगवान ने फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स बना के भेजे हैं विच विल लास्ट हर लाइफ टाइम. नाउ दैट इज वाई जो एज ऑफ मेनोपॉज होती है वो फिक्स नहीं होती है. Yes. किसी को 40 में हो जाता है, किसी को 45 में होता है, किसी को 55-57 तक भी चलता है. Yes. डिपेंड करता है उसका ओवेरियन रिजर्व कितना था. Understood. इट इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड कि आपकी ओवरी में
कितने एग्स Eggs है and it will lead to the menopause. कब तक आपके पीरियड चलेंगे, दैट इज नंबर वन. बट टुडे बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, pollution, bad food, smoking, alcoholism, pesticides, herbicides, women are losing their eggs faster. Today I have seen women at the age of 35 going into complete menopause. Yes, nowadays. So that also. Then, like I said, even for men are also losing their sperms faster. Yeah. So, female infertility, male infertility, दोनों के दोनों अब बढ़ते जा रहे हैं. So, एक रीजन तो ये हुआ कि हम खुद अवॉइड कर रहे हैं. Secondly, medically also. It is problems हो happening. रही हैं. Yeah. And मैम सोसाइटी में बोला जाता है कि अगर वो माँ नहीं बन पा रही है तो दैट इज द विमेन इशू. विमेन की ही गलती है कि आप इनफर्टाइल हो. कोई ये नहीं देखता कि नो, द रिप्रोडक्टिव थिंग इज द मैच ऑफ बोथ मेन एंड विमेन. व्हाई द विमेन इज ऑलवेज ब्लेम्ड? इसमें मेन का क्या रोल है और मेन की इनफर्टिलिटी भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? सो जो इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि 40% केसेस में इट इज फीमेल फैक्टर. 40%? 40. या 40% it is male factor. Understood. 40 equal. 10% both and 10% cause not known. मतलब जिसका कोई कारण हमें नहीं पता लगा. So men are equally responsible and equal culprits in not getting pregnancy pregnant. or not getting pregnancy. Yeah. So it's high time and nowadays things are changing. People are coming forward. हम देखते हैं men भी आते हैं, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज भी लोग होते हैं, मदर्स बोलती हैं नहीं मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसी का चेकअप कराओ. बिल्कुल. बट देन वी टेल देम भाई ऐसा नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी सही प्रकार से ट्रीटमेंट करें तो इनको भी अपना टेस्ट कराना ही पड़ेगा, करवाना पड़ेगा. एंड बहुत सारे केसेस में हमें वहाँ पे मिलती हैं प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन वी ट्रीट देम थिंग्स बिकम बेटर. And so today we have so many things available. We have, what is known as artificial reproductive technology, ART बोलते हैं इसमें, IUI, IVF. Yes. बहुत कुछ है. A lot of to things. help a couple become pregnant. तो once again right क्या है कि आप एक डॉक्टर के पास आए ताकि हम उसको प्रॉपरली असेस कर पाएं कि प्रॉब्लम क्या है, एंड देन वी ट्रीट दैट. Yeah. तो लोग मुझे आते हैं बोलते नहीं मैम आप एक टैबलेट बता दो ताकि मैं अगली बार प्रेग्नेंट हो जाऊं. Yes. बोलते भाई कोई मैजिक टैबलेट नहीं है, यहाँ पे कोई स्टिक नहीं है कि हमने आपको दिया और आप प्रेग्नेंट हो So गए. we need to first find out. A good doctor will find out what is the reason. कि कहीं कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, मान लो किसी को फाइब्रॉइड है, किसी को पॉलिप है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, then we'll advise accordingly. किसी के ओवुलेशन में प्रॉब्लम है तो we'll advise accordingly. किसी की ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो then nowadays we can open the tube surgically. हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो अलग ट्रीटमेंट है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज उसको सही ढंग से डायग्नोसिस हो तभी आपकी सही ट्रीटमेंट हो पाएगी. मैम अभी आपने एक टर्म यूज किया है ART, जिसमें IVF ये सब भी आता है. आजकल आई थिंक द होल कंट्री हैज कम टू नो अबाउट द एग फ्रीजिंग. तो ये बेसिकली एग फ्रीजिंग होता क्या है एंड व्हाई इट इज नाउ डेज वेरी इंपॉर्टेंट? जैसा कि आपने अभी कहा कि नाउ डेज द एग्स आर डिसअपियरिंग, नॉट डिसअपियरिंग बट गेटिंग डिस्ट्रॉयड फास्टर देन द प्रीवियस टाइम. तो एग फ्रीजिंग कितना इंपॉर्टेंट बन गया है, क्या प्रोसेस होता है और कब एक लेडी को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? हाँ, सो एग फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि हम अपने लिए प्लान बी क्रिएट कर रहे हैं. प्लान बी. बस जरूरी नहीं है कि हम उस एग्स को यूज करेंगे, हो सकता है हम अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाएं. लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर हमने सोचा है कि हम अपनी प्रेगनेंसी 35 या 37 या जब भी प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि तब तक हो सकता है आपका ओवेरियन रिजर्व काफी कम हो गिर जाए. डिस्पाइट यू टेकिंग बेस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ, there are some women where we find कि उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है. तो अगर ये वाली women ने ऑलरेडी अपने एग्स फ्रीज करा रखे हों तो हमारे पास एक प्लान बी है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो इट्स सिंपली क्रिएटिंग अ प्लान बी. नाउ So it's not a taboo. It's not a taboo at all. Yes. It should not be a taboo. Now you asked what is the right age to get it done? Yeah. As early as possible. Even early 20s. Oh. मैरिज का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है.
हम जितना जल्दी एग फ्रीजिंग करते हैं उतना ही हमें बेटर नंबर और बेटर क्वालिटी मिलते हैं. अगर किसी का ऑलरेडी AMH कम हो गया है तो हमें उसमें से अंडे मिलेंगे ही नहीं और उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी मिलेगी. इफ देयर इज अ यंग गर्ल हु इज 20 or 22 एंड सेज नहीं मैम आई हैव डिसाइडेड मैं 35 तक तो शादी करूंगी नहीं एंड उसके बाद भी 2-3 साल के बाद प्रेगनेंसी करूंगी, आई वुड टेल हर प्लीज गेट योर एग्स फ्रोजन इवन नाउ. सो द अर्लियर वी डू इट द बेटर इट इज. ओके. तो मैम अगर हमने जल्दी एग फ्रीज करवा लिया तो ये एग फ्रीज का ड्यूरेशन नहीं बढ़ता है, मतलब वो ओल्ड नहीं होता है, दैट इज एज इट इज. They can be stored till infinity. Infinity, like जितने सालों तक. जितने सालों तक हम उसको रख सकते हैं. एंड मैम ये IVF साइकिल वैसे कितने बार होता है, कैसे होता है? IVF साइकिल में भी हमने बहुत बार सुना है कि उनका IVF साइकिल फेल हो गया, उनका ये हो गया, उनने इतने बार ट्राई किया बट तब भी नहीं हो पाया. तो इसके कारण क्या होते हैं? मतलब IVF मतलब ये नहीं होता कि आपको अश्योर्ड प्रेगनेंसी होगी. नहीं बिल्कुल भी नहीं. जिंदगी में कुछ भी अश्योर्ड नहीं है. नथिंग इज अश्योर्ड. सो ये फेलिंग होती क्यों है मैम? नहीं, तो पहले तो हम ये समझते हैं IVF होता क्या है. IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन. These are different things. Okay. Normally हमारे शरीर में फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, इसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन. Okay. अब अगर यही फर्टिलाइजेशन हम शरीर के बाहर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो उसमें हम क्या करते हैं, मदर का एग लेते हैं, फादर का स्पर्म लेते हैं और बाहर उनको मिलाते हैं. फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि अब इसका एम्ब्रियो बन गया कि नहीं, और फिर उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है. उसके बहुत रीजंस होते हैं. अगर किसी की ट्यूब में ब्लॉकेज है, अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस है, अंदर एडिशंस हैं, या किसी का एग काउंट बहुत कम हो गया है, या हस्बैंड का सीमेन काउंट बहुत कम है, या ओवुलेशन ढंग से नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है. इसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है कि क्यों किसी में IVF साइकिल फेल हो गया. मे बी द क्वालिटी ऑफ द एग वॉज नॉट good, maybe the sperms were not of a good quality, maybe the embryo was not of a good quality, maybe जो endometrium होते हैं जिसके अंदर egg has to implant उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी. So there are multiple reasons and like I said इतना आसान नहीं है ऐसे बोलो कि ये हुआ और इसकी वजह से ये चीज़ फिक्स कर लो तो अगली बार ठीक हो जाए. And what is the success rate? So किसी भी अच्छे सेंटर में usually 45 to 50% is the success rate, which means अगर आप 10 IVF साइकिल कर रहे हो तो 5 सक्सेस होंगे और 5 सक्सेस नहीं होंगे. This is normal and any good IVF center should be honest and transparent enough to tell this to people with their patients कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो वो हो जाएगा. हाँ. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ 45 to 50% is one of the best IVF centers. Okay. Best IVF centers. Anybody who claims more than that कि हमारे 80% है 90% है is not the truth. It's just a marketing strategy. It's not the truth. And ये मैम लगभग I will not say कि एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, बट लगभग कितना कॉस्ट पड़ता है एक IVF का? लगभग अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए. 1.5 से 2 लाख. अगर आप डिपेंड करता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है. इफ समबडी नीड्स मोर मेडिसिन्स टू स्टिमुलेट द ओवरी तो कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होती है वो मेडिसिन्स की होती है. हाउ मेनी मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड नंबर ऑफ एग्स. एंड दैट्स व्हाई वुमेन का जो बॉडी होता है वो बहुत चेंजेस के थ्रू जाता है. Some people experience weight gain, tiredness, fatigue because obviously hormonal medicines लग रही हैं. So changes do happen, but at the same time, IVF has revolutionized. I mean, it has given hope to millions of people. Exactly. So, I mean, it has done great things. And ma'am, these babies are as healthy as the natural baby. 100%. 100%. IVF does not cause abnormalities in the baby. In fact, nowadays we have techniques जिसको हम PGD बोलते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि एम्ब्रियो को मदर के अंदर डालने से पहले we do all genetic tests on that embryo to put them
inside before we put them inside the mother's body. So the chances of genetic abnormality actually decrease when Okay. we do these tests on the embryo. So Very बहुत great. बहुत सारी चीजें आजकल होती हैं, and today medical science has advanced so much. मैम अब थोड़ा हम एजुकेशन की बात करें. यू ऑल्सो हैव वन ऑफ द चैनल कॉल्ड मैत्री, एंड जब हम नाम सुनते हैं तो वी जस्ट रिकॉल द मैत्री, जो हमारी एक इतनी ज्ञानी सर्वगुण संपन्न हमारी महिला थी फ्रॉम द एंशियंट टाइम. तो मैम आप जब एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू द गायनोकोलॉजी नाउ डेज फॉर द पीपल? So, see, I'm a clinician, I'm a surgeon, with full-time clinical practice. या But मैं हर बार सोचती थी कि ऐसा कैसे है कि लोगों को पता नहीं है. बिल्कुल. इतने अजीब से और इतने स्टूपिड डाउट्स कैसे लोगों को हो सकते हैं. इसका रीजन ये है कि आज की डेट में इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है, एंड मोर देन इंफॉर्मेशन इट इज मिस इंफॉर्मेशन. At the click of a button, you will have 100 influencers talking about something which they are not supposed to be talking. यस. Because उनकी कोई medical qualification नहीं है. Because आज की डेट में social media पे, search engines में, and now with ChatGPT, Claude, and हम आज digital era में हैं. Everyone has access to information. या. But how do we make sure कि एक quality information हमारे पेशेंट्स के पास जाए? या. That's the reason 4 years back during COVID times, I created Maitri. और Maitri हमने नाम भी इसलिए चूज किया था because Maitri means friendship. या. So it is your friend, and it is your friend which is going to give you a trusted medical advice. So that is why we chose this term. And we have today globally more than 1 million people who follow us for the trusted advice. In fact, WHO also says Wow. that it is one of the voice which you can Bring trust. up. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you, Vidika, and thank you, Medkit. Thank you so much, ma'am.